Uh, Good evening, everybody. Thank you for being on this call with us. Today, I have from SBI. Navneet is probably a household name now. He's a very old hand in the industry, and uh, I think so. It will be a big opportunity for all of us to listen to him. I and more of a lot of you will have a lot of questions about various things, and I'll just request all of you to ask the questions at the end of the session, because most of the times the questions that you ask get answered in due course. So if you have questions, please try to reserve them till the end of the session. And thank you, Navneet, for being with us today, and over to you. Thank you so much, and it's indeed a great pleasure to be with all of you this evening. And the humanity has been going through an extraordinary, challenging time, an extraordinary time over the last 2 months or so. Uh, when the crisis started around in end February or early March, I think India was relatively earlier in terms of taking very stringent measures in terms of cancelling the visa of a lot of foreign travelers, then moving towards a one-day lockdown and then extended lockdown, which have been continuing. And now, of course, over a period of time, it's likely to undergo a change. Now, in this period, uh, clearly it is coming out that India has relatively been able to contain the health crisis compared to most of the other Western countries and several other countries. But still, we'll have to keep our fingers crossed. We'll have to just wait and watch how the situation evolves. As of now, over the last couple of weeks, we have seen the problem more concentrated in the larger cities. But as a migrant laborer go to the villages, we'll have to just wait and watch how the situation evolves over the next few days. In the beginning of this crisis, everybody thought that social distancing is the way out. So testing as many people as possible, then tracing them, isolating them, informing, so that you can really quarantine themselves, those people. That was the way out, and the focus has been on survival. The focus has been just keep everything shut, and the lockdown would be effective in terms of containing this disease. Now, after 2 months, the focus globally in terms of public discourse is shifting from survival only to revival also, and that's very, very critical, because the way dealing with this crisis goes is, if you are very stringent on the lockdown, if you are very stringent to contain the health damage, then you also have a deep economic crisis, because there is a demand shock. As even if you want to consume something, you are sitting at home, you are not traveling, you are not going out, you are not ordering something. And also there is a supply shock. Even if you have a shop or a factory or a business, you cannot start because you are at home. So to contain the damage, what the governments are trying to do is, you give an economic stimulus. So while being stringent to ensure that the health crisis remains contained, but then give a stimulus to contain the economic damage. I come to that stimulus part and the economic part in few minutes time. But before, as I mentioned, my view is that I think the public discourse has already started moving towards that. We cannot keep waiting for a medication, for a vaccine to emerge, or for antibody tests that we were talking about till some time back. But we may have to learn to live with this health crisis. Nobody really knows if there is going to be a second wave of this. Nobody really knows, can there be a third wave of this? Nobody really knows how much time it will take for a vaccine to get fully developed, properly tested, and the entire humanity can get that vaccine. Nobody has any timeline in mind. How much time it will take for a good medication to come, how much time it will take for some of the other things that people are talking about, antibody tests, etc., to be highly effective, cheap, and available to everybody. So then what do we do? At least in last 2 months have given us some kind of way in terms of how do we live with it. And over the next few months, my sense is that there has to be a lot more innovation on protective gear, on disinfection, on sanitization, on how do we live with it. Just to give an example, or maybe a may or may not be a right analogy, but I just thought about it. So the air travel, when it started, was a very risky affair. There used to be a lot of accidents. Over the years, airline industries and governments and everybody
put a lot of measures in place. And today, air travel is one of the safest mode of travel. Similarly, if you look at the road travel, there is always a risk. But what we have done, we have put better roads, then we put a divider so that possibility of colliding is less. You put a lighting, you put a signal. You say that you can only drive if you have a license. If you drive a car, then you have to have a seat belt, and you have to have airbags and variety of other things, safety measures. If you're driving a two-wheeler, then you need a helmet, so on and so forth. And over a period of time, we have tried to work around, we have tried to make it safer and safer and safer. This is a health crisis over the next 2 months. My sense is that public discourse will start moving in that direction, that how do we live with it? Because keeping complete shutdown, everybody at home, will create another economic crisis with more implications. Now, the biggest challenge here is the people who are old and the people who have certain other diseases which make them very vulnerable. So from a social perspective, political perspective, from everybody's perspective, what we need to think innovatively over the next few months and few quarters is, if there is a safety net that we can provide to people who are old and vulnerable, so that rest of the population can go back to work. Of course, the way of work will also change, and maybe I'll touch upon that a little later. But my sense is that increasingly we'll have to move more and more towards that. But there are going to be waves. So we have seen, I think, in some of the cities where a little bit of relaxation came, and again cases went up, and then they had to again become a little stricter. So I think over the next few days, few weeks, we'll have to go through that start, stop. We'll have to deal with the monsoon season, which will start in another 1.5 months time in places like Bombay, where there are large number of cases. How the society will deal with this crisis along with the monsoon, that will make it a little difficult to deal with. The good and bad part is, as I said, the bad part, of course, it will become a little complicated. The good part is that every organization, the governments, administration, everybody has learned so much during this crisis to deal with it. One of the things, before I talk about the economy and the market, I would like to mention about India, that in last 2 months, the way we have worked as a society, if you take the government, all the administration, the healthcare, and all the other parts of the society, and you see the businesses, and you see the communities, the way we all have worked together to deal with such a massive crisis in such a peaceful manner. And so far, while again I said that we keep our fingers crossed, touch wood, I hope that things don't deteriorate from here, but clearly looks like that we are coming out better from it. Far better than what one would have feared about. And of course, we'll have to wait and watch the situation on a daily basis. But we have built a huge social capital as a country. And some of the things that have been done in last few years, whether it's the LPG cylinder in Ujjwala, or whether the GEM Trinity, Jandan Yojana, Aadhaar, and mobile number everybody has got, so that cash could be transferred. Whether the Swachh Bharat, where the construction of toilets, etc., in terms of sanitization. Navneet, Yeah. Sorry, can you just mix a little bit of Hindi too? Some people are mixing me up. Sure. So we don't really know what to follow, but आप दोनों mix करके बात की. ठीक है, पक्का. सो जिस तरह से हमने पिछले 2 महीनों में इसके साथ डील किया है, और एक बहुत बड़ी सोशल कैपिटल हमने एज ए कंट्री बिल्ड कर लिया है, इस पे आज कुछ वैल्यू रखना बहुत मुश्किल है कि इसकी कितनी वैल्यू है, बट लॉन्ग रन में कई चीजें हैं. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई एम श्योर आप सब लोग रोज पढ़ते हैं. द वे ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज थॉट सो इनोवेटिवली अबाउट सो मेनी सॉल्यूशंस टू डील विद इट. द वे वी हैव इन्वेस्टेड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो नए ऐप्स हैं, या गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ किया है, या हेल्थ केयर सेक्टर ने क्या कुछ किया है, आई थिंक, और सोसाइटी ने क्या किया है, जिस तरह से एनजीओज ने काम किया पूरी कंट्री में, आज 125 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन की कंट्री में, द वे वी हैव हैंडल दिस हेल्थ क्राइसिस has made us better to not only deal with a crisis like this, but also do like really wonderful work over a period of time. For example, in our own business, you take the NJ's example. The number of transactions they are doing, or as an AMC, the number of transactions we are doing when everybody is at home.
We never thought about it. We were thinking that work means like everybody goes to office and then you have the business, but now it's working so well. So I mean, I'm just giving a small example, but I think over a period of time we'll realize the value of all of this. And of course, as I said, that in next few months the focus will move more and more from survival only to revival also. It's not a trade-off between lives versus livelihoods, lives as well as livelihood, जान भी जहान भी. I think धीरे 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 पूरा डिस्कोर्स वहाँ पे मूव होना चालू होगा. Now this is a global crisis. इंडिया में ही नहीं है. I mean almost the whole world, 700 750 करोड़ की humanity has never fought against a single enemy the way we are fighting against this virus. As I said, because of this बहुत economic damage है पूरे वर्ल्ड में. 2020 में जो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, which this will be worse that we have seen in our lifetime and probably even in the previous generation. Beginning of the year, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऐसा मानना था कि 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ होगी 3.3%, 3.3% पॉजिटिव. आज वो बात कर रहे हैं 3% नेगेटिव ग्रोथ की. और ऑलमोस्ट 170-180 देशों में roughly 180 countries will have a decline in per capita GDP. So it's a big impact on the global economy. So what governments have done, what policymakers have done, lot of stimulus, economic stimulus to the economy. So there are two kinds of stimulus. One is a monetary stimulus and one is a fiscal stimulus. Monetary stimulus is central banks are cutting interest rates. They are buying bonds from the markets. They are buying government. Like if I look at the US Federal Reserve, they are buying government bonds, they are buying corporate bonds, they are buying even bond funds, municipal papers, all kinds of securities to supply a lot of liquidity in the banking system, in the bond market, so that companies can borrow money, companies can survive. कहीं पे गवर्नमेंट्स ने हार्ड कैश दिया है एवरी सिटीजन को, कहीं पे उन्होंने एसएमईज एमएसएमई के लोन्स को गारंटी किया है, कहीं पे कोई एयरलाइन सेक्टर के सपोर्ट के लिए किया है, कहीं पे उन्होंने कोई और सेक्टर के लिए कोशिश करी है. हर जगह पे गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स मिलकर के कोशिश कर रहे हैं दैट इकोनॉमिक डैमेज को जितना कंटेन किया जा सके उतना कंटेन करने की कोशिश करते हैं. पर उसके बाद भी अगर आप 2 महीने अगर लॉकडाउन है, आप एक सिंपल चीज सोचिए, if you have 12 months in 1 year, the 1 month of output, economic output is like 8.5%, right? I mean 8.5% every month is like 12 months, 100% of the economic output. If you have a lockdown for 1 month, 8.5% of economic output is gone. If you were working 50%, half the population was working, half the plants were working, half the vehicles were running, it was 4.5% damage in 1 month. If let's say 1/3 were working, maybe 6% damage in 1 month. If it is 2 months, 12% GDP gone. If it is 3 months, I mean 18% GDP gone. So nobody really knows, but it's going to be a deep impact. Governments are trying everywhere to contain this damage. Now we come to India. I have a lot of views on global economy, on currencies, on commodity or gold, etc., which we can take later if there is interest. I'll try to keep it short so that we have more time for Q&A. Now अभी इंडिया की बात करते हैं. सो इंडिया में जैसे मैंने बोला, हम स्ट्रिंजेंसी में सबसे ऊपर थे. हमारे यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में. उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि हेल्थ क्राइसिस का डैमेज हैज बीन मच मच लोअर इन इंडिया. वी डिडंट हैव एज मेनी कैजुअलिटीज. अगर अपन कंट्री का साइज देखें 1.35 बिलियन पीपल, उसके कंपैरिजन में जो आज आपने इटली में देखा है, स्पेन में देखा है, या यूएस में देखा है, दूसरी लॉट ऑफ कंट्रीज, ईरान एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में देखा है, वैसा डैमेज हमारे यहाँ नहीं हुआ अभी तक. वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. बट अगर आप स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन करोगे तो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट भी काफी डीप आएगा, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी आ गया. आई एम श्योर जब अब जो आईआईपी नंबर आया पिछले महीने का, या जब जीडीपी ग्रोथ नंबर आएगा मार्च क्वार्टर का या जून क्वार्टर का, वो बिल्कुल विजिबल होगा कि इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है. जो मैंने पहले 2 वर्ड यूज करे, डिमांड शॉक है, सप्लाई शॉक है. डिमांड शॉक है कि अगर मैं कंज्यूम करना चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डिमांड ही कम हो गई और सप्लाई भी कम हो गई, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रनिंग और शॉप्स आर नॉट वर्किंग और फैक्ट्रीज आर नॉट रनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. अगेन व्हाट सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ट्राइंग, हमारे यहाँ भी हमने यही करा, मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस. इनिशियली हमारे यहाँ स्ट्रिंजेंसी सबसे ऊपर थी, स्टिमुलस दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत कम था. जो ज्यादा स्टिमुलस था वो मॉनेटरी स्टिमुलस था. आरबीआई ने 3 चीज करी. नंबर 1,
cut interest rates. They sharply cut interest rates so that if interest rates come down, then it's good for all businesses. Even the government borrows a lot of money. If bond yields come down, it's good for the borrowers and for the consumers, for the businesses. They release a lot of liquidity in the banking system. Banking system में 7-8 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने डिफरेंट स्कीम्स के जरिए बैंकों के सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में छोड़ दिया. इतनी लिक्विडिटी है तो ऑटोमेटिकली रेट्स कम होगी और धीरे 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 बिजनेसेस को पैसा मिलने लगेगा. बट फॉर वेरियस रीजंस बैंक्स फॉर वेरी रिस्क एवर्स, बैंक्स को पैसा आरबीआई ने दे दिया लेकिन बैंक्स को की रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो लैंड नहीं कर रहे. तो अगर आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आप जो बिजनेसमैन को मिलोगे, वो बोलेगा कि अरे इतनी लिक्विडिटी दिखा रहे हैं सिस्टम में, टीवी पे हम सुनते हैं इतनी लिक्विडिटी है सिस्टम में, बट हमारे बिजनेस को तो मिल नहीं रही है, बैंक दे नहीं रहा है. तो उसके लिए some more steps have been taken by the government. I'll come to that in 1 minute's time. The second thing RBI did was the moratorium for 90 days may get extended for some of the business, and third was little bit of restructuring got allowed. कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है या कुछ और इशू हो गया तो उसके लिए सम बिट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कैन हैपन. हमारा व्यू है शायद थोड़ा और रिलैक्सेशन करना पड़े रिस्ट्रक्चरिंग में, और लिक्विडिटी रिलीज करनी पड़े. आरबीआई को हो सकता है डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू हो रहे हैं मार्केट में, और गवर्नमेंट बहुत इशू कर रही है, वो बॉन्ड डायरेक्टली अगर आरबीआई खरीद ले ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स और कम आ जाए और सभी बोरोवर्स को फायदा हो. और कुछ ऐसा करे ताकि हर एक के लिए, आज गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड के करीब 6% के आसपास है, बट अगर आप यील्ड देखोगे ट्रिपल ए बॉन्ड पर, डबल ए बॉन्ड पर, तो वो स्प्रेड्स अभी भी बहुत ज्यादा है. तो धीरे धीरे कुछ और करे कि वो स्प्रेड्स कम हो जाए. The other thing that government has done, and I'm sure you heard from the PM, a very big stimulus of a total stimulus of 20 lakh crore. Now, I'll just explain in 2 or 3 minutes time what this 20 lakh crore is all about. So 20 lakh crore includes this 8-9 lakh crore roughly. I mean, अंदाजा बता रहा हूँ मैं आपको, 8-9 लाख करोड़ रुपए जो आरबीआई का स्टिमुलस है वो उस 20 में इंक्लूडेड है. Then remaining 10-11 lakh crores में तो 1.7 लाख करोड़ का स्टिमुलस तो अप्रैल में अनाउंस हो गया था. आई थिंक दैट वाज इन दी जब ये लॉकडाउन वगैरह चालू हुआ था, 1,70,000 करोड़ का, दैट वाज लाइक फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल एंड फॉर दिस समथिंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, फॉर ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ईपीएफओ का गवर्नमेंट का 3 महीने का कंट्रीब्यूशन है, काफी सारी वो चीजें थी जो 1,70,000 करोड़ वो था. फिर आपने देखा प्रेस मीट 13th, 14th, 15th और आज जो प्रेस मीट हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें बहुत सारे मेजर्स है एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उनके लिए, वेरियस सेक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, स्मॉल वेंडर्स के लिए, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया, बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस हुई है. अब उसमें 2 पार्ट है. जाकर मैं आपको पहले दिन का बताऊं 13th of अप्रैल का, तो उसमें अनाउंसमेंट से करीब 5,80,000 करोड़ का स्टिमुलस. But actual spending is not 5,80,000 crore. It's not government is spending 5,80,000 crores in the market, but government is creating a way where a lot of these, just to give one example, SMEs, MSMEs can get loans of 3 lakh crore. तो 3 लाख करोड़ का एक पैकेज था फॉर एसएमई एमएसएमई को इंक्रीमेंटल लोन के लिए, कि भाई अगर आपका 25 करोड़ से कम का लोन है, 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड था फरवरी के एंड में, तो आज आप बैंक से एडिशनल लोन ले सकते हो 20% ऑफ योर एग्जिस्टिंग लोन, और उसको गवर्नमेंट गारंटी कर देगी. तो बैंक को कोई रिस्क नहीं है, बैंक आपको और पैसा दे देगा. इफ यू आर रनिंग ए स्मॉल होटल और इफ यू आर रनिंग ए स्मॉल बिजनेस एनीवेयर, यू आर गेटिंग दैट इंक्रीमेंटल मनी फ्रॉम द बैंक. But government is not giving a hard cash, but government is giving the guarantee, and that guarantee is like 3 lakh crore. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो 90,000 करोड़ बोरो करेगा मार्केट से, और वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, बिकॉज पावर के लोग पे ही नहीं कर रहे हैं, जब प्लांट्स ही नहीं चल रहे हैं या कई लोग बिल नहीं पे कर रहे होंगे, तो पावर कंपनीज के पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके पास पैसा नहीं है, तो वो जनरेशन कंपनी को पैसा नहीं दे रही, तो आगे से आगे चेन टूट जाती है. तो वो 90,000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट से नहीं निकलेगा, बिकॉज वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाजार से बोरो करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे देगा. उससे पावर सेक्टर को थोड़ा फायदा हो जाएगा, या उनकी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी. तो ऐसा करके टोटल 10, 11, 12 लाख करोड़ का लास्ट 3 या 4 दिन में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. उसमें टोटल स्पेंडिंग मेरे ख्याल में 3, 4, 5 लाख करोड़ की टोटल होएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो जाएगा ये स्कीम की वजह से. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई एम श्योर आप सबने सुना होगा लास्ट 3-4 दिन में, विच इज अ क्लेवर थिंग, बिकॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज आपने कम पैसा फिस्कल डेफिसिट से निकाल के
उतना ही इम्पैक्ट उसका आ जाए, वो आपने कोशिश उसमें से कर ली है। बट मेरे को लगता है कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है अभी, काफी बिजनेसेस में जो इम्पैक्ट होगा, शायद गवर्नमेंट को और खर्चा करना पड़ेगा। अब लोग बाग क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है क्या फिस्कल डेफिसिट लेने की, बिकॉज इफ दे बोरो मोर मनी, if there is more supply of government securities in market, then interest rates go up, which is then not good for the economy at this juncture. So our view is that Reserve Bank of India has a lot of capacity. A lot of this additional supply of government bonds can be absorbed by them, and government may have to spend a little bit of more money, but government gradually कर रही है धीरे धीरे, simply because अभी किसी को पता नहीं है how much GST revenues will get impacted, how much income tax revenues will get impacted, how much corporate tax revenues will get impacted, how long this slowdown going to be. So government is trying to preserve whatever they can and trying to at least जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है या जो स्मॉल यूनिट्स हैं, एमएसएमईज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको किस तरह से रिलीफ दिया जा सके। फॉर आई एम श्योर लार्जर बिजनेसेस के लिए भी दे वुड ट्राई टू डू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द स्टिमुलस पार्ट। सो मैंने बोला कि जो इकोनॉमिक डैमेज होगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन and people not working or people not consuming or people not producing, to some extent because of this stimulus a support will come. Now I'll just mention maybe in next 5 minutes, while there is a lot of risk on the horizon, I mean nobody really knows about this health crisis, but there could turn out to be some structural positives for India. I'm sure some of this you would have already heard in the PM speech. The whole world will have lot of animosity towards China. China के प्रति हर एक को एक लग रहा है कि वहां से ये हेल्थ क्राइसिस निकला, उसके पहले भी ट्रेड वॉर चल रही थी बिटवीन चाइना एंड यूएस। सो काफी कंपनियों का ऐसा होगा कि जिनका 100% या तो वो प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंपोनेंट चाइना से आ रहा है या काफी कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं, तो दुनिया की हर कंट्री सोचेगी कि हम उसको डाइवर्सिफाई करें, हमारी सप्लाई चेन हम बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये ऑलरेडी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो रहा था, केमिकल्स में हो रहा था। नाउ इट कैन बिकम सिग्निफिकेंटली बिगर। इट कुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया when large companies in the world start shifting their supply chain to India. There could be an opportunity in healthcare because a lot of spending will happen on the healthcare sector. There's a lot of opportunity for India on the digital sector. Think about it. The whole world is now working from home. The whole world will be investing so much in new technologies, new digital infrastructure, cyber security and all of that. And जैसे इंडिया ने एक Y2K movement था, and I always say this, that this could be another Y2K movement for India, where on 31st December 99 Indian IT companies ने वो coding करके problem solve किया. Today again there will be a lot of opportunities for whether Indian IT companies or Indian digital technology companies, etc. In healthcare, India can emerge as a very big player. In a lot of other industries, when supply chain shift to India, India can emerge as a big player. Why these countries will choose India? ऐसा नहीं है वी आर गोइंग टू कॉम्पीट, फिलीपीन से कॉम्पीट करेंगे, वियतनाम से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके पास सारी चॉइसेस है। बट इंडिया का एक एडवांटेज है कि एक तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है, वी हैव अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, वी हैव लॉट ऑफ डिमांड in India. So I mean you don't have to depend completely on exports. We have a huge labor supply in India. मतलब this skilled labor, semi skilled labor, unskilled labor, next 30-40 years India जितनी supply बहुत कम countries के पास है। Then in last few months governments have worked on lot of other reform, GST हो गया या digitalization हो गया, FDI opening up है, बहुत सारे reforms हो गए, corporate tax rate कम हो गया। इंडिया की जो tax rate है for new manufacturing plant for next 5 years is only 15%. This is one of the lowest in the world. So there will be enthusiasm in a lot of global companies to set up their base in India. This could be an opportunity for India. I talked about healthcare, I talked about digital. I'm also thinking that इंडिया का एक सबसे बड़ा एडवांटेज अभी है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर लाइक वेरी वेरी हाई। जब हमारे यहाँ पहले जब भी क्राइसिस हुआ 2013 में हुआ या उसके पहले 2008 में हुआ या 91 में जब बड़ा क्राइसिस था, तो एक्सटर्नल सेक्टर वाज नॉट इन अ गुड शेप. Today, with like when we entered this crisis, we had $475 billion of foreign exchange reserves जो RBI के पास पड़े हैं, उनको भी हम काफी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही कारण है कि इंडिया की जो करेंसी है वो लास्ट 2 महीने में रिलेटिवली कम गिरी है। अगर हम दुनिया के कई दूसरे कंट्रीज देखें इमर्जिंग मार्केट्स में, उनकी करेंसी हमारे से कई ज्यादा गिरी है। और पहले की भी आप क्राइसिस देखोगे 2013 में
जब वो यूरोपियन रिलेटेड क्राइसिस था, टेपर टेंट्रम, अगर आपको याद हो, तो हमारा रुपया कुछ 48-50 से सीधा ऑलमोस्ट 68 चला गया था। इस बार हम देखें अगर 70-71 से 75-76-77 rupee has not depreciated as much, and we have strong foreign exchange reserves in hand, जिसको हम लोग काफी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बात करी है, we can buy crude oil from this for long term, we can utilize this to create some fund which can invest as capital in some of the entities if government feels a need, or can provide some more risk capital to Indian corporates, और काफी तरीके से हम सोच सकते हैं। दूसरा, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो बड़े रिफॉर्म्स होते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, आई ऑलवेज से दिस, रिफॉर्म्स ऑलवेज हैपन आउट ऑफ कंपल्शन, नॉट कन्विक्शन। जब कंपल्शन आता है तब बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, और हम क्लियरली देख रहे हैं कि कई रिफॉर्म्स हैं जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से हम लोग बात कर रहे हैं, बट इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ऑफ कोर्स लास्ट 4-5 सालों में हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं, बट फिर भी कई ऐसे जो कठिन रिफॉर्म्स हैं, जो बहुत ही टफ रिफॉर्म्स हैं, लैंड, लेबर, कई सारे जो रेगुलेशंस है जिनको और इजी करना, या जैसे पीएम ने 4 चीज बोली, लैंड, लेबर, लॉ एंड लिक्विडिटी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में अगर इसको डिफाइन करूं तो लैंड एंड लेबर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, पावर चाहिए। तो हो सकता है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये एरियाज में नहीं हो पाए वो भी हो जाएंगे, बिकॉज हमको वी वांट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ ग्लोबल कैपिटल, ग्लोबल कंपनीज। लॉ को मैं एक ब्रॉडर तरीके से देखूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म चाहिए कंट्री में टू मेक द बिजनेस अ लॉट मोर इजियर, टू इनवाइट मोर एफडीआई इनटू द कंट्री। हो सकता है वो और रिफॉर्म्स बहुत जोर से हो। इनफैक्ट अगर आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो हमने पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट किया ऑन द माइनिंग पॉलिसी। आप सोचो, इंडिया के पास we have one of the highest reserves of coal, we have one of the highest reserves of lot of other minerals, बट फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज, बिकॉज हमारी जो पॉलिसीज थी वो कंड्यूसिव नहीं थी फॉर द प्रोडक्शन। एंड दिस इज अ मोमेंट वेयर वी कुड टेक दोज हार्ड डिसीजंस एंड इट कैन टर्न आउट टू बी गुड। जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, मैं इतना सा ही बोलूंगा कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी चाहिए टू, आज जो मैं पहले बता रहा था कि 8-9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई ने छोड़ दी, फिर भी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आप किसी से भी बात करोगे, कोई भी बिजनेस है तो बोलेगा नहीं, अभी तो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, या फिर भी कोई भी रेट पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर फाइनेंशियल सिस्टम, whether it's PSU banks, private banks, housing finance companies, NBFCs, MFIs, mutual funds, the entire financial system. And there have been few challenges. Last 2 years आपने देखा even some of the AAA rated entities ने default किया, उसके बाद जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में वगैरह, आई थिंक वी नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क। एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगेन like a 1991 movement where we had a big balance of payment crisis, we use that as an opportunity to come out with very good reforms. हो सकता है इस बार भी कुछ बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में हो, और स्ट्रक्चरली इंडिया में स्ट्रेंथ है, बिकॉज वी हैव द डेमोक्रेसी, वी हैव डेमोग्राफिक्स, वी हैव डिमांड, एंड जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है डिजिटलाइजेशन। इंडिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कि आज ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई पेमेंट, ई कॉमर्स, मतलब जितना आप बोल सकते हो, ई बैंकिंग, और आई कैन ऐड ई एंटरटेनमेंट, और आई वुड ऐड इवन ई जुडिशरी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, and more government, more and more businesses, more and more individuals can find and use this digital technology to take India to the next level. एक आजकल लोग बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब अगर आपके पास डेटा है तो उसकी वैल्यू क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है, विच इज ट्रू। इन 21st century डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अगर डेटा इज द न्यू ऑयल, then India should be the richest in that commodity, because सबसे ज्यादा डेटा हम लोग ही जनरेट कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन इंडिया का is higher than United States today, is even higher than China today, जो बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमीज मानी जाती है। और उसी का एक कारण है, और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कंपनी और दैट डील और दैट स्टॉक और अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग इन अ मोर ब्रॉडर टर्म्स कि यूएस की एक कंपनी ने इंडिया के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में 5-5.5 बिलियन डॉलर का, मतलब आप सोचो ऑलमोस्ट लाइक 40-50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया। ये टाइम में
जब वहाँ की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा? आई थिंक दे सॉ दैट देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, एंड ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल इंडिया के लिए हो सकती है। तो हमारे पास, आई कैन गो ऑन, while there are a lot of risk on the horizon, but there are a lot of opportunities also if you take advantage. And again, to give the example of NJ, if you are an NJ client, you are feeling the importance of the digital technology, that today आपको एक ट्रांजैक्शन करना है, आपको नया SIP खोलना है, उसमें पॉज करना है, इंक्रीज करना है अमाउंट, रिडेम्पशन करना है, कुछ भी करना है, you don't need any paper. I mean, it's like easily you can do through their platform, and same at our end, we can also do that. Now coming to the market, there are two ways to look at it. अभी अपन सपोज निफ्टी 9200 9300 के लेवल्स पे है। एक वे है देखने का कि मार्केट नीचे से करीब 25% बढ़ गया, हम ऑलमोस्ट 7600 निफ्टी तक चले गए थे, अभी लाइक वहां से 20-25% की तेजी आ गई। तेजी क्यों आ गई? जब इतनी अनसर्टेनिटी है, नंबर ऑफ पीपल who were infected in India or in the world were far lesser that day than what they are today. तो तीन चीजें हैं। नंबर वन, I think there is optimism that we are starting to learn to live with this disease. There will be some positive outcome over a period of time. The all the businesses on everybody will readjust to this new reality, and that's a hope that ultimately a medication will come, vaccine will come. Number two, ये जो इतना strong stimulus हुआ पूरे वर्ल्ड में, monetary stimulus हुआ, इतना fiscal stimulus हुआ, गवर्नमेंट ने इतनी स्पेंडिंग करी, सेंट्रल बैंक्स ने इतनी मनी प्रिंटिंग करी, इंडिया में भी करी, तो उस लिक्विडिटी की वजह से होप है कि इकोनॉमिक डैमेज होगा, बट इतना बड़ा नहीं होगा, गवर्नमेंट्स उसको धीरे धीरे काफी प्रोटेक्ट कर देगी। और तीसरा रीजन है कि जब मार्केट इतना गिर गया तो वैल्यूएशंस बिकेम सो अट्रैक्टिव दैट इवन इफ यू अज्यूम कि यार बहुत प्रॉब्लम होने वाली है 6 महीने साल भर, बट इवन देन इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो मार्केट बढ़ गया। दूसरा तरीका है मार्केट का सोचने का कि यार आज भी मार्केट तो 20-25% नीचे है, जहाँ पे पीक पे था अभी 2 महीने पहले, जहाँ फरवरी मार्च में थे, तो नीचे है क्योंकि आज भी काफी अनसर्टेनिटी है। ये हेल्थ क्राइसिस को लेके अनसर्टेनिटी है, किसी को नहीं पता है, जैसा मैंने बोला सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, कितना हम इसको, कितना जल्दी वैक्सीन आ पाएगा, कितना जल्दी कोई एंटीबॉडी टेस्ट आ पाएगा, और क्या होगा इसका। अनसर्टेनिटी है कि जितना स्टिमुलस अनाउंस हुआ है उसका कितना इफेक्टिव वो हो पाएगा इकोनॉमी का डैमेज कंटेन करने में। अनसर्टेनिटी है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी आएगी इस साल, किसी को नहीं पता है ऑनेस्टली। अगर मैं आपको बोलूं, कई लोग बोल रहे हैं +1%, आपने सुना होगा किसी ने बोला -5%, नोबडी रियली नोज। ये 1 महीने का शटडाउन है कि 15 दिन का आएगा, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितना इम्पैक्ट आएगा, कितने बिजनेसेस पे, दीज आर वेरी अर्ली डेज, बट आएगा जरूर शॉर्ट टर्म में, कोई डाउट नहीं है। And long-term implications, our behavior will change, consumer behavior will change, business behavior will change, policies will change. There'll be positive aspect, there'll be some negative aspect of all of that. So obviously with all of that uncertainty, market इतना ऐसा exuberant नहीं हो जाएगा कि वापस जो previous peak था 2 महीने वाला, पहले वाला, वो आ जाएगा। आज वैल्यूएशंस उतने चीप नहीं है जितने 2 महीने पहले थे, वो इतने रिच नहीं है जो मार्च में जब मार्केट नीचे गया तब थे, और उतने ऊपर नहीं है जो 2-3 महीने पहले थे ये क्राइसिस होने के बीच में। वी आर समवेयर इन द मिडिल ऑफ दोस 2 पॉइंट्स। तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? मुझे लगता है कि आपका जो भी एसेट एलोकेशन एनजे के एडवाइजर्स ने बनाया है, बेस्ड ऑन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, योर रिस्क एपेटाइट, योर ओवरऑल गोल्स, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपकी लिक्विडिटी है, उस SIP को मेंटेन करिए, उस SIP को कंटिन्यू करिए। अगर आपकी कैपेसिटी है वो अमाउंट बढ़ाने की, तो आप थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में जो ये वॉलेटिलिटी रहेगी, अगले कुछ महीनों में ये जो अनसर्टेनिटी रहेगी, आपका धीरे धीरे अच्छा एवरेजिंग होता चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप 3 साल का, 10 साल का, तो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये क्राइसिस से हम निकलेंगे, श्योरली बाहर निकलेंगे क्राइसिस से। इसका कुछ डैमेज होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट कई नई अपॉर्चुनिटीज भी इसमें निकल करके आएगी। सो यू कीप दैट फेथ इन इंडिया, यू कीप दैट फेथ इन ह्यूमैनिटी, यू कीप दैट फेथ इन योर फंड मैनेजर, एंड देन ग्रेजुअली कीप एक्यूमुलेटिंग द इक्विटी पोर्शन। ऑन द डेट साइड अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स आपने काफी न्यूज सुनी है, एक फंड हाउस के कुछ 6 फंड बंद हो गए या कुछ और हो गया, बट अगर आप टोटल देखोगे पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो डेट का AUM है, और वो जो प्रॉब्लम हुई है, वो कोई 1 या 2% की होगी। बाकी सब जगह पर, और मैं तो हमारे फंड हाउस की बात कर सकता हूँ, पूरी इंडस्ट्री की भी कर सकता हूँ,
अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियोज देखोगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियोज की डिसेंट क्वालिटी है। और वैसे भी अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या बैंकिंग पीएसयू फंड में या अगर आप हाइब्रिड फंड वगैरह में कर रहे हैं तो वहाँ पर ओवरऑल क्वालिटी ठीक है और इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने पहले बोला कि आरबीआई का इंटेंशन रहेगा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाए तो अपॉर्चुनिटी है। बॉन्ड मार्केट में भी अगर आप लॉक इन कर सके हायर रेट्स में, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे रहेगी, बट मार्केट में पैसा तभी बनता है जब थोड़ी सी रिस्क लेते हैं। बिना अनलेस यू टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क यू डोंट गेट हायर रिटर्न। तो इक्विटी में रिस्क क्या होता है, दैट मार्केट्स आर वॉलेटाइल। एक साल अभी जैसे 30% मार्केट गिर गया, कभी एक साल 30% पॉजिटिव बन गया, वॉलेटिलिटी है, इसीलिए वो लॉन्ग रन में आपको 10-12-14% का रिटर्न आता है, क्योंकि आप वो वॉलेटिलिटी को झेल पाते हो। नहीं तो आप उसको कंपेयर कर लीजिए फिक्स डिपॉजिट या फिक्स इनकम से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और वो डिफरेंस का पैसा इसलिए बनता है क्योंकि आप वो वॉलेटिलिटी की रिस्क ले लेते हो। सो मे बी आप मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। दूसरे कई व्यूज है मेरे ग्लोबल इकोनॉमी पे, हम लोग क्या कर रहे हैं फंड्स में वगैरह, बट मे बी आई स्टॉप हियर जस्ट टू कंक्लूड दैट माई व्यू इज दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ द पब्लिक डिस्कोर्स will start moving from survival only to revival also. How do we revive again? The public discourse will start shifting from looking at the near-term damage to also what are the opportunities that we can see in the long run. What could be interesting opportunities for India as a country, for us as a society? एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव एक बड़ा शॉक लगा मार्केट को, मतलब किसी को नहीं पता था कि मार्केट इस तरह से 30-40% गिर जाएगा। वी सॉ, but now people have seen that, people have learned to live with this crisis, and from a portfolio perspective over a period of time, I think this will also give an interesting opportunity to keep reallocating the your allocation in the right asset class, and if you maintain the discipline of your asset allocation, I'm sure there would be interesting opportunity on that side. So maybe on that note, I stop and will be happy to take any questions on anything that you have in mind. I may have briefly touched upon a lot of things, but if you want me to expand more on any of these, I'll be very, very happy. Yeah, thanks, Navneet. Standard questions, a lot of questions, but I'll just try to, club them together and, just to ask you a few general questions. And I'm sure you're familiar, that's what people ask. So the first question is, what's our appetite क्या बोलेंगे, दूसरा के इन्वेस्टर्स हैं, एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, आपका वॉइस कट रहा था, मैं सुन नहीं पाया कुछ भी। Sorry, you didn't get me? नहीं, हाँ yeah. अभी आवाज आ रही है बराबर आपकी। नहीं, मैं ये बहुत क्वेश्चंस है, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को आप क्या बोलेंगे, लमसम इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग एसआईपी इन्वेस्टर्स को, अलग अलग तरह के फंडों में जो है, बैलेंस फंड में, स्मॉल कैप में है कि बिल्कुल बिल्कुल। So while this crisis is very different from a lot of other crises, and it is not right to compare this with, let's say, 2008 में क्या हुआ था या उसके पहले कोई क्राइसिस में क्या हुआ था। At the same time, history is a good guide कि जब मार्केट कोई भी रीजन से, चाहे अगर हम इस सेंचुरी की बात करें 20वीं शताब्दी की, तो अगर 9/11 का जब हुआ यूएस में 2001 में, या 2000 का आईटी बस्ट हुआ, या जब मार्केट क्रैश हुआ थोड़े टाइम के लिए 2006 में, या 2008 में तो बहुत बड़ा क्रैश हुआ, या 2013 में क्या हुआ, या अर्ली पार्ट ऑफ 2016 में, generally, I mean, when market falls sharply the way it has and you have a crisis, generally it is very, I mean, if you go by the history, I mean, that's a good time to put more money in the market. But क्या होता है investors का एक behavior that we always turn very greedy जब market ऊपर जा रहा होता है, we turn very fearful जब नीचे आ रहा होता है। और ये हमारी टेंडेंसी बहुत डिफरेंट है जिस तरह से हम हमारी नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल दूं कि 9000 वर्सेस 12000 वर्सेस लेट्स से 7600 जहाँ नीचे में गया। आज अगर कोई एक रेफ्रिजरेटर का या कोई टेलीविजन जो आपको लेना है उसका प्राइस 12000 था, और अगर आपको अनाउंस किया कि 9000 में मिल रहा है, तो लाइन लग जाएगी क्रोमा के बाहर या विजय सेल्स के बाहर।
क्योंकि लोगों को लगेगा 12,000 की चीज 9,000 में मिल रही है तो ले लेनी चाहिए पक्का। बट मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट में 12,000 वाला निफ्टी जब अगर 9,000 में मिलता है तो हमको बहुत डर लगता है कल तो 8.5 हो जाएगा, बिकॉज रेफ्रिजरेटर लाने के बाद हम उसका मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन नहीं करते, हमारी तो एनएवी एनजे के आपके ऐप पे या आपकी वेबसाइट पे रोज दिख जाती है। सो देन वो एक साइकोलॉजिकली बहुत डर लगता है, और उस टाइम पे न्यूज़ फ्लो आपको ऐसा होगा, सी मार्केट नीचे तभी होगा जब न्यूज़ फ्लो नेगेटिव होगा, और पैसा तभी बनता है जब आप वो नेगेटिविटी में पैसे लगाएं एंड देन जस्ट वेट फॉर द बेटर टाइम्स टू कम, बिकॉज इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, I always use this sentence and I'm using it again. Dark clouds are always followed by a shining sun. This time won't be any different. अब ये clouds कितने dark रहेंगे, ये बादल कितने गहरे रहेंगे और कितने टाइम तक रहेंगे किसी को नहीं पता है, बट हिस्ट्री आज तक की यही है, 100 साल की, 200 साल की और उसके लंबी भी, कि अल्टीमेटली शाइनिंग सन आता है. Ultimately we will find a way to deal with this crisis. Ultimately we will rebuild our businesses, we will rebuild our economy, and economy will be bigger than where it is today. We don't know whether it will take 1 year or 3 year. तो यही एक अच्छा टाइम होता है जब आपने पहले SIP आप कर रहे थे, जब 12,000 का निफ्टी था, 11,000 का था, 10,000 का था, तो जब आप नीचे में मिल रहा है तो 9 पे भी या 8 पे भी उसको कंटिन्यूस करिए. मैंने पहले बोला कि अगर आपके पास कैपेसिटी है और आप रिस्क ले सकते हैं तो वो SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए, बिकॉज नीचे के मार्केट में आपको और एवरेज करना चाहिए. अगर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इक्विटी एलोकेशन कम था, तो आज मौका है, अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जब मार्केट नीचे रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप धीरे धीरे अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा लीजिए. ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा है तो जस्ट स्टे डिसिप्लिन, आई थिंक जस्ट स्टे पुट इन द मार्केट एंड जस्ट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है उसमें यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी डिसिप्लिन. आपके यहाँ से फोन है क्या? हेलो हेलो, आई हैव टू कॉल यू बैक. सॉरी, मेरे को लगा शायद सर मेरा ऑडियो बराबर नहीं है, यू कॉल्ड. सो मेरे ख्याल में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्ट, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ 2008 क्राइसिस का, बिकॉज वी हैव सीन दैट एंड आई हैव द डिस्टिंक्ट मेमोरी ऑफ हाउ द इन्वेस्टर्स बिहेव्ड दैट टाइम. सो जनवरी 2008 में 21,000 का सेंसेक्स था, and lot of money of new equity investors came in 2007 and 2008, and investors kept doing their SIPs. जब अक्टूबर क्रैश हुआ मार्केट में और सेंसेक्स गिर के धीरे 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 8,000 तक पहुंच गया, उसके बाद काफी लोगों ने अपनी SIP बंद कर दी अगले 4-6 महीने कि यार मार्केट रोज गिर रहा है, NAV नीचे गिर रही है, मेरा तो 1 ईयर 3 ईयर रिटर्न नेगेटिव हो गया, तो थोड़ी देर मार्केट से बाहर रहते हैं. जो इन्वेस्टर्स ने अपनी SIP कंटिन्यू रखी या थोड़ी SIP बढ़ा दी, उन्होंने अपना लॉस आगे जाके कवर ही नहीं करा, बहुत अच्छा रिटर्न भी बना लिया. जिन लोगों ने अपनी SIP बंद कर ली उनको बहुत टाइम लगा ब्रेक इवन होने में भी, वो मार्केट को वापस लेवल आने में, बिकॉज उन्होंने नीचे में उसको एवरेज नहीं करा. मेरे को नहीं पता है बाजार अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कहाँ जाने वाला है. मेरे को ये पता है कि अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते रहोगे तो 3-5 साल में probability of you making decent money is pretty deep. I mean, probability of making good money is pretty decent. Right. Thank you. There is one more follow-up question on the same lines कि लोग, मुझे क्वेश्चन से भी लग रहा है कि लोगों के पास पैसा है, SIP बढ़ाने की कैपेसिटी है, सबके क्रेडिट कार्ड बिल 0 हो गए हैं, तो SIP बढ़ा सकते हैं, पैसा बैंक FD से इक्विटी में भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा डर लगता है. तो आप क्या लमसम में आप कुछ STP सजेस्ट करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में डालना सजेस्ट करेंगे, या SIP बढ़ाना सजेस्ट करेंगे? और 1-2 फंड भी बोलिए जहां पे आपको, मींस, इज देयर एनी काइंड ऑफ फंड व्हिच यू शुड स्टे अवे फ्रॉम? या Sure. So I think as I said that it depends on your allocation और आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है. आपकी रिस्क एपेटाइट है 50% इक्विटी की और आप ऑलरेडी 50% पे हो, तो आप थोड़ा बहुत में भी थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आज वैल्यूएशंस नीचे हैं. जब वैल्यूएशंस कम होते हैं तो फ्यूचर रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं. तो अगर हम जब हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस देखें कि जब ऐसे वैल्यूएशंस थे तो अगले 3-5 साल में कैसे रिटर्न आते हैं, अगर हम हिस्ट्री देखें तो अगले 3-5 साल में अच्छे रिटर्न्स आते हैं वहाँ से. हालांकि क्राइसिस डिफरेंट है, पहले मैंने बोला जैसा अभी हेल्थ क्राइसिस कितने टाइम चलेगा किसी को नहीं पता, कितना डैमेज हो सकता है अगले 3-6 महीने में किसी को भी नहीं पता है. बट मेरे ख्याल में अल्टीमेटली in a year's time things will start coming back to hopefully
normalcy and then 3-5 return could be good. किस तरह के फंड में? मेरे ख्याल में मल्टी कैप फंड, जहाँ पर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट हो जाता है। इक्विटी हाइब्रिड फंड, जहाँ पे आपका इक्विटी में भी और इक्विटी में भी अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, ऑल्सो वहाँ पे आपको बॉन्ड एक्सपोजर भी मिल जाता है, मिक्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एटसेट्रा। दूसरा मेरा ऐसा व्यू है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कि इतना लार्ज कैप में, इतना मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन होता है स्मॉल कैप में बहुत रिस्क है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के डिसरप्शंस हो रहे हैं अभी, कि ये जो क्राइसिस है और ये जो एक पूरी वर्ल्ड चेंज होगा, एक कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा, ये जो नए डिजिटल डिसरप्शंस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस आएंगे, जो पॉलिसी चेंजेस होंगे, लॉजिस्टिक्स में चेंजेस होंगे, सप्लाई चेन में चेंजेस होंगे, जो फैक्टर मार्केट्स है, लैंड, लेबर, उन सब में चेंजेस होंगे, तो कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, कई तरह की रिस्क जो आज हम नहीं सोच सकते हैं वो भी आएगी। तो ऐसे टाइम में मेरे को लगता है कि जरूरी नहीं कि अगर आप लार्ज कैप और आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो तो ही आप अच्छा करोगे, और मिड और स्मॉल कैप जो है वो सबको बड़ी तकलीफ आने वाली है। कई बार ऐसा हो जाता है ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, अगर मैं आपको 91 का एग्जांपल दूं, जब 91 में इतने बड़े चेंजेस हुए इकोनॉमी के अंदर और इतना बड़ा क्राइसिस आया और बाद में इंडिया की इकोनॉमी कम्प्लीटली चेंज हो गई, तो कई बहुत छोटे छोटे से सेक्टर्स और छोटी छोटी सी कंपनियां बहुत बड़ी बन गई अगले 5 और 10 साल में। और अगर आप देखोगे कि कौन सी कंपनियां उस टाइम पे सेंसेक्स में थी या जो टॉप 30, 40, 50 थी, कई कंपनियों को बहुत तकलीफ हुई आने वाले कई सालों में, बिकॉज पॉलिसीज इतनी चेंज हो गई। तो जब इस तरह के बड़े डिसरप्शन होते हैं तो कई बार small businesses can also do well if they take the right decisions at this time, if they use the opportunity. और यही कारण है कि जो हमारा स्मॉल कैप फंड है, जो पिछले कई सालों से सब्सक्रिप्शन के लिए हमने क्लोज कर रखा था, हमको लगता था कि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है स्मॉल कैप में। आज क्योंकि मार्केट गिर गया है, वैल्यूएशंस ठीक है, और हमको लगता है कई छोटी कंपनियां हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ले सकती है और उनके वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो हमने हमारा स्मॉल कैप फंड सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है। विल ओनली टेक 1000 करोड़, सो इट मे गेट क्लोज डाउन अगेन वंस वी रीच दैट 1000 करोड़। सो मेरा व्यू है कि वो लार्ज, मिड, स्मॉल को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लार्ज में बहुत ही कम रिस्क है, मिड में उससे ज्यादा है, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा। ऐसा जरूरी नहीं है। ईच कंपनी के बिजनेस पर, उनके मैनेजमेंट पर और आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। Yeah, thank you. Just last few, one or two questions. One is people are still a little skeptical about debt funds. डर रहे हैं लोग, liquid fund में भी पूछ रहे हैं कि कुछ है। और दूसरा के क्या कोई particular thematic fund आपको अच्छा लगता है, जैसे बैंकिंग PSU फंड है ऐसा कुछ? सो ऑन द डेट फंड क्या होता है हमेशा, मतलब इन्वेस्टर्स ना बड़ी मैंने देखा है ये कि जब डेट फंड्स में every time they don't get the, I mean they try to time the market, they try to time the cycle and all that, and जो डिसिप्लिन इंडस्ट्री में SIP के थ्रू इक्विटी में आ गया है वो अभी तक डेट में उतना नहीं आया है। जब हम लोग छोटे थे तो सबको याद होगा रेकरिंग डिपॉजिट यूज टू बी लाइक वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट पीपल यूज टू डू। उस टाइम पे तो पोस्ट ऑफिस में भी होती थी, बैंकों में भी होती थी, तो हम लोग में रेकरिंग हर महीने पैसा डाल रहे हैं, उसी का कॉन्सेप्ट SIP तो बन गया। बट हम डेट फंड में ऐसा नहीं करते। मुझे तो लगता है, ऐसा लगता है कि शायद डेट में भी SIP की अपॉर्चुनिटी है। डेट एक कुछ ऐसा पोर्शन होता है आपका हर एक इन्वेस्टर का जो आपको डेट फंड में ही रखना है, जिसको आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। टैक्स का एडवांटेज तो क्लियरली बहुत है, जो आप टैक्स पे करते हो। और अगर आप डिपॉजिट रेट्स देखोगे आज की सेविंग अकाउंट की या टर्म डिपॉजिट की और उसको कंपेयर करोगे जो मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स हैं या जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न है, तो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है आज की तारीख में। और उसको, उस पर आपको वो टैक्स नहीं दे रहा है जब तक आप निकालोगे नहीं, आप ग्रोथ स्कीम में हो, तो मतलब उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है ओवरऑल रिटर्न के अंदर। तो डेट फंड्स में, और अगर आपको डर लग रहा है कि ये जो हुआ अभी 6 फंड का और क्रेडिट वगैरह में रिस्क है, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लगाइए। उसमें तो सारे वेरी हाई क्वालिटी पेपर्स है। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जाके एनजे के एडवाइजर से ले सकते हैं, आप नाम पढ़ेंगे तो ये आपको कंफर्ट आ जाएगा। बैंकिंग एंड PSU डेट फंड है, उसमें लगाइए। उसमें खाली बैंक्स और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं खाली उनका ही डेट लिया जाता है। मैं तो बोलूँगा आप थोड़ी और रिस्क लीजिए क्रेडिट में, बट अगर अभी एनवायरनमेंट ऐसा है कि सबको लगता है कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए और कुछ भी नहीं लेनी, तो गिल्ड फंड होते हैं जहाँ पर खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ तो कोई भी क्रेडिट की रिस्क ही नहीं है। तो डेट में भी
बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जहाँ पे ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट होता है, या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड वगैरह में भी देखने चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे ही जा रही है, तो आपको एक कैपिटल गेन मिलता है। और अदरवाइज अगर आप डर से अगर कैश रख रहे हैं, तो आप देखिए कॉस्ट कितनी है उस कैश रखने की। आप बैंक की डिपॉजिट की रेट्स देखिए, या बैंक की, और बैंक भी ऐसा नहीं होता है। देयर वाज यस बैंक जिसमें प्रॉब्लम हुई, तो मतलब नहीं है कि आप सारे बैंकों से पैसा निकाल के हार्ड कैश घर में तिजोरी में ही रख लेंगे, अपनी सेफ में रख लेंगे, नहीं करते हो ना आप अच्छा बैंक देखते हो। सेम चीज वैसी ही है, आप अच्छा फंड जहाँ पे आपको कंफर्ट है और आपको लग रहा है पोर्टफोलियो अच्छा है और आपका एनजे एडवाइजर बता रहे हैं आपको, तो उसमें रखिएगा। एनी व्यू ऑन गोल्ड फंड्स के बारे में कुछ आप? थोड़ा में रखना चाहिए हेजिंग की तरह। मतलब गोल्ड का तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लाइक अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदते हो कि यार एक 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 50,000 1 लाख रुपए आप इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दे रहे हो, तो आपकी ये इच्छा नहीं कि मैं उस 1 से 1.5 कमाऊं कि कैसे भी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं पैसे ले लूं। आई थिंक गोल्ड इज समथिंग सिमिलर। अगर आपका पोर्टफोलियो है जिसमें लॉट ऑफ इक्विटीज देयर, लॉट ऑफ डेट इज देयर, तो गोल्ड से एक हल्की सी हेजिंग है। कैसे है कि अगर पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम हो गई, कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क आ गया, कोई यूएस चाइना ट्रेड वॉर, या यूएस चाइना में कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क हो गया, या मिडिल ईस्ट में ऑयल के प्राइसेस इतने नीचे हैं, कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क हो गया, या पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल बैंक्स ने इतना पैसा प्रिंट कर दिया कि लोगों का फेथ ही कम हो गया करेंसी पे, तो उस टाइम पर गोल्ड के प्रति फेथ बढ़ जाता है। बिकॉज आप गोल्ड नया प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, करेंसी तो आपकी जितनी प्रिंटिंग प्रेस में आप प्रिंट कर सकते हो, गोल्ड आप नया नहीं बना सकते हो, तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पिछले मतलब साल भर में तो हमने काफी रैली देखी। हमारा एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20-21% गोल्ड में थे। अभी हमने थोड़ा सा उसमें कम कर दिया, क्योंकि उसमें हम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कैश भी रखते हैं, सब कुछ उसमें उसमें सब असेट क्लास रखते हैं। तो वहाँ पे हम गोल्ड पे ओवरवेट थे, मिनिमम 10 रखते हैं। वहाँ पे अभी हम लोग 20-21% चला रहे थे, क्योंकि हमको लग रहा था तो गोल्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ग्लोबली जब नेगेटिव रियल रेट्स होते हैं कि आज इन्फ्लेशन सपोज यूएस में 1% भी आएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट तो 0 हो गई, नेगेटिव रियल रेट्स होती है, तो लोग बोलते हैं यार मैं पैसा कोई फाइनेंशियल एसेट में नहीं रखूंगा, रियल एसेट में रखूंगा, गोल्ड में। तो उसकी वजह से थोड़ी गोल्ड की डिमांड आती है। थोड़ा नेगेटिव ये है कि अगर इंडिया में फिजिकल डिमांड कम हो गई, लोगों के पास कम पैसा है ज्वेलरी खरीदने का, या चाइना की फिजिकल डिमांड कम हो गई, या सेंट्रल बैंक हैं जितने दुनिया के, उन सब के पास बहुत सोना पड़ा है, बहुत गोल्ड पड़ा है, अगर उन्होंने बेच दिया कुछ, या इंडिया ने कोई स्कीम निकाली और टेम्पल्स का सोना बिक गया। बट फिर भी मोटा मोटी आई थिंक अगले कुछ सालों में दुनिया में सब रिस्क को देखते हुए थोड़ा सा हेजिंग के लिए 2-4-5% पोर्टफोलियो रखना चाहिए गोल्ड में। अगर आपको शॉर्ट टर्म का कॉल लेना है 1-2 साल का, तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड के थ्रू लीजिए। लंबे टाइम के लिए रखना है तो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड फंड भी अच्छे हैं, क्योंकि उसमें आपको मेरे ख्याल में कुछ तो 1-2% ब्याज भी मिल जाता है, उसमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है। Thank you. So just the last concluding remarks because we are almost 1 hour now. मुझे लगता है कि गोल्ड तो किसी इंडियन को बोलने की जरूरत नहीं है, रखना चाहिए मुझे। बट लोगों का पहले से ही हाँ, लोगों का बट पहले से ही बहुत सारा एलोकेशन है। हाँ, इंडियंस आर जनरली अंडरवेट इन इक्विटीज। अपना इक्विटी बिल्कुल। एक्सपोजर रिक्वायर्ड लेवल पे था ही। तो आप लास्ट में आप क्या बोल, लोगों के पास पैसा भी है और एफडी में है कि कहीं पे भी है, तो आप क्या बोलेंगे? लमसम एसआईपी करके कितने साल तक न्यूज नहीं देखना चाहिए? अगले 2 महीना, 4 महीना, या किसका कितने बोल रहे साल? हैं आप, इक्विटी का? हाँ, इक्विटी को हैं आई लोग मीन तो। इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म। आई मीन आप नहीं नहीं, न्यूज कब तक नहीं देखना है फिर? पैसा डाल के अच्छा, आज। न्यूज न्यूज अगले कुछ महीनों तक बहुत अनसर्टेनिटी है। मतलब किसी को भी अभी ये टाइम पर नहीं पता है कि ये हेल्थ क्राइसिस कैसे इवॉल्व होगा। पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है, सारे 7 बिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड, द एंटायर ह्यूमैनिटी, एवरी कंट्री इज इन्फेक्टेड, नोबडी रियली नोज हाउ डीप द इम्पैक्ट विल बी, nobody really knows how much businesses will get impacted, how much NPA can come, new NPA can come into the banking system, etc. मुझे पता है कि हमने 91 का एक क्राइसिस का, अगर मैं एक उदाहरण दूं, आई थिंक हमने थोड़ी सी बात करी थी कि 91 में इतना बड़ा क्राइसिस था इंडिया के लिए, हमने हमारा गोल्ड प्लेज किया था एज अ कंट्री। मतलब हमको एक्चुअली गोल्ड यहाँ से ले जा करके फाइनेंस मिनिस्टर को पैसा बोरो करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व $1 के रह गए थे, ऑयल प्राइसेस ऊंचे थे, देयर वाज एन इराक वॉर, एंड इंडिया के पास पैसा ही नहीं था बिल्कुल ही। और उस क्राइसिस में मेरे को याद है
तो 950 सेंसेक्स हो गया था। और उस क्राइसिस में जब हमने राइट काइंड ऑफ स्टेप्स लिए और रिफॉर्म्स करे, अगले 1-1.5 साल में 92 में तो जो मैंने बुल मार्केट देखा है 4000 सेंसेक्स, वो 1000 से 4000, वैसा बुल मार्केट तो मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूँ। हर बार जब ऐसा क्राइसिस आता है, वही टाइम पर जो इन्वेस्टर्स पेशेंटली, एंड आई यूज द वर्ड अगेंस्ट, आई मीन अगर मैं SIP का फुल फॉर्म थोड़ा चेंज कर दूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह, तो अगले कुछ महीनों तक इन्वेस्टेड पेशेंटली, बिकॉज पेशेंस, इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी। और पहले ऐसा होता था कि 2-4-5% का मूवमेंट तो कभी कभार ही आता था। आजकल तो मतलब इट्स बिकमिंग ए रूटीन। मार्केट 3% ऊपर खुला, 2% नीचे बंद हुआ, दिन में 4-5% का मूवमेंट आ जाता है। पहले नहीं, कई दिनों में, महीने में आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता था NAV में। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट वॉलेटिलिटी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अनसर्टेनिटी। बट अगर आप वो पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे, और कई जने मेरे से पूछते हैं कि यार मार्केट कहाँ होएगा, आज लगा दें कल लगा दें, किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। एक हॉवर्ड मार्क्स करके बड़े अच्छे इन्वेस्टर है US के, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, एक बात बताते हैं कि सो जब कई ऐसा पूछते हैं कि भाई हम ऐसा नीचे गिर जाए कहाँ पे हम लोग ले लें। When the knife stops falling, when the dust settles, when there is absolute clarity on the horizon. When the knife stops falling, when the dust settles, when there is absolute clarity on the horizon, you can be rest assured there won't be any bargain left. कि जब मार्केट ऐसा, जब बोलते ना, मतलब एकदम वो चाकू की तरह गिर रहा है, जब वो बंद हो जाएगा, जब एकदम डस्ट सेटल हो जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि बस अभी तो वैक्सीन आ गई है, अभी तो मेडिकेशन आ गया है, 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर ऐसे भाव नहीं रहेंगे। अच्छा भाव और अच्छी न्यूज कभी भी साथ में नहीं आती है। अगर भाव अच्छा है तो न्यूज मस्ट बी बैड दैट टाइम। न्यूज हैज टू बी नेगेटिव फॉर प्राइस टू बी गुड। और जब प्राइस बहुत अच्छा होगा तब दीदी न्यूज बैड होगी तो ही प्राइस अच्छा होगा। जब न्यूज बहुत अच्छी होगी तो प्राइस अच्छा नहीं होगा खरीदने के लिए। सो अभी बैड न्यूज है और ये रहने वाली थोड़ी टाइम। मैं आपको कोई फॉल्स ऐसा प्रॉमिस नहीं देना चाहता कि बस अब तो हो गया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में, किसी को नहीं पता, हो भी सकता है। वी मे बी लकी, कल को कुछ आ गया एक हफ्ते में कि यार एक वैक्सीन का प्रोग्रेस इज फार बेटर, या मेडिकेशन में कुछ अच्छा आ गया, या जितने भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स कर रही है उसका पॉजिटिव इफेक्ट जल्दी से आ जाए, हो सकता है। वो तो मतलब एज एन इन्वेस्टर आई ऑलवेज से दिस, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट and hope for the best, remain realist in the portfolio, always prepare for the worst। तो इसीलिए हमने गोल्ड की बात करी, थोड़ा बहुत कैश की बात करी, एंड लॉन्ग टर्म की बात करी, एंड होप फॉर द बेस्ट कि आपने उन सबके साथ अगर अच्छे से इन्वेस्ट किया है, डिसिप्लिन रखा है, और आई एम श्योर NJ एडवाइजर्स एडवाइज यू प्रॉपरली, then there is I mean lot of money to be made in India over a long period of time. Yeah, thank you, Navneet. I think so. We'll thank you for this, wonderful session. We have many questions which we'll try to answer at our end. If there is something, we'll reach out to you. We had Sure, about anytime. 3,000 people, 3,000 people today with us on Thank you this. so much. And I wish you all very good health. I wish you all, I mean, for your families also. And I'm sure, जैसा मैंने पहले बोला, हर क्राइसिस में नई चीज़ें सीखने को मिलती है, लाइफ चेंज होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्राइसिस के बाद एक गोल्डन पीरियड आएगा साइंस का, एक गोल्डन पीरियड आएगा स्पिरिचुअलिटी का, और नई अपॉर्चुनिटीज आएगी कई नई तरह की चीज़ें करने की लाइफ में। तो ऑलवेज आई थिंक वी हैव टू लुक एट द ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक इंडिया ने जो सोशल कैपिटल बिल्ड करी है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आज कोई प्राइस नहीं डाल सकते उस पर, उसके हम इकोनॉमिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो बाद में जाके पता चलेगा कि 125 करोड़ लोगों ने इतने बड़े क्राइसिस को इतना पीसफुली हैंडल किया है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जो बिजनेसेस ने किया है, जो कम्युनिटीज ने किया है, हाउसिंग सोसाइटीज ने किया है, कहीं पे कोई लंगर ने किया है, या कहीं पे कोई मिशनरी ने किया है, या कहीं पे कोई स्वामीनारायण ने किया है, या कहीं पे कोई जैन किसी ने किया है, या कुछ और धर्मशाला ने किया है, जो हेल्थ केयर सेक्टर ने किया है, हम सब ने मिलके जो किया है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आई एम श्योर good times will also follow, and hopefully will follow soon. Thank you so much. Thank you. Best of luck, and please stay safe. Please stay home. Wishing everybody the same, and thanking Navneet Munot once again. Thank you. Thanks, ladies and gentlemen. That's the end of our session today.